I would like to share with our worthy guest that our character building committee was formed last year during the pandemic. It was in line with the objectives of New Education Policy 2020. The committee has been doing very commendable work in the area of character building, which ultimately leads to nation building. I would like to express my deep gratitude to our chief guest who has come to guide us about the relevance of Ayurveda in modern times. We all know that the modern system of medicine, though it is quite comprehensive, yet many people prefer to rely on our ancient wisdom of healing and good health, and gradually this number has been increasing. The Ministry of Ayush has launched National Ayush Mission to promote Ayush medical system. During the pandemic, the importance of our own system of medicine has gained immense significance. Once again, I extend a very warm welcome to our chief guest for today and other guests. I request my dear colleagues to help our students in installing the Ayush Sanjeevani mobile app on their mobile phones. And I take this opportunity to express my gratitude to the organizing team for organizing this very meaningful and useful event. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for enlightening us with yet another good suggestion that we should all download the Sanjeevani app in our mobile phones. Definitely, we are going to follow this, ma'am. Now, with your kind permission, ma'am, before inviting our resource person on the platform, I just would like to introduce him to the audience. Okay. Dr. N.S. Bharadwaj has received the degree of Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery from Punjab State Faculty of Ayurveda and Unani System of Punjab, Chandigarh. Sir has joined the medical services as Assistant Medical Officer in Department of Health, UT Chandigarh, and served as Senior Ayurvedic Physician and in charge of Ayurveda in the Department of Ayush. After serving as Deputy Director for 7 years, Sir is presently working as Joint Director, Department of Ayush, Chandigarh. Sir is the lifetime member of National Integrated Medical Association and Akhil Bharatiya Ayurved Mahasammelan. In an endeavor to update the professional skills, Sir has attended training program in Shalakya and Sanghyaran sponsored by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Sir has been part of various national and international workshop, awareness programs and seminars. Sir has gained recognition and appreciation for his outstanding work. To name a few, Sir has gained Certificate of Proficiency for participation in Arogya Expo organized by ITFT in the year 2002. Sir has gained Gaurav Samman Patra for participation in Pradeshik Ayurved Sammelan, Uttar Pradesh on 28 October 2002. Recently, Sir has been awarded with a Certificate of Appreciation by Ayush Department, UT Chandigarh for significant contribution in the fight against COVID-19 pandemic. Sir has also been honored by the Social Welfare Society, Sector 24, UT Chandigarh for contribution in the fight against COVID-19. Being a social awareness enthusiast, Sir has been part of several events. To name a few, Sir has delivered a talk on piles and fistula during a program Sanjeevani broadcasted on FM1 All India Radio, Chandigarh on 4th June 2005. Sir has delivered a talk during the CII fair at Parade Ground, Sector 17, Chandigarh in the month of October 2017. Sir has delivered a health talk on program Sehat Ka Vardaan, Nari Ka Samman on radio Jyotirgamya, Punjab University. Sir has also participated in various health melas and organized various free health checkup camps. Sir, we are extremely delighted to have you today
and we are grateful that you have spared your valuable time and being part of this wonderful event. Now I would like to invite Dr. N.S. Bharadwaj on the platform. Sir, I would like to invite you to share your words of wisdom. Yes, sir. नमस्कार मैम जी, नमस्कार सर. आप कैमरा सर ऑन करना पड़ेगा आपको. योर कैमरा इज ऑफ. यस सर, यस. And before sir begin with the program officially, I would like to take up a group picture to cherish the memories of the day. I will request all the participants to kindly turn on their cameras for a while. Please turn on your cameras. सर मास्क उतार सकते हैं 2 मिनट के लिए? थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much, sir. नमस्कार, प्रणाम. नमस्ते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. आपसे मिलने का वक्त मिला आज. बीइंग ए फिजिशियन, हम डेली रूटीन की जो हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम उनसे बात करेंगे. आज के जीवन में हमारा रोज का सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो कोविड के कारण आपको भी पता है कि बहुत डिफरेंट हो गया है. तो मैं आप सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अपनी जो दिनचर्या है उसको थोड़ा बेहतर बना के रखिए. क्योंकि आजकल जो लोग, ज्यादातर बच्चे घर में बैठे लैपटॉप ऑनलाइन सारा काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं. तो सबसे ज्यादा मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा लेट आवर तक जागते रहना, देर तक काम करना, ये भी हमारी हेल्थ को काफी हद तक डिटीरियोरेट करता है. सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना सबसे बेहतर चीज है. अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले, जैसे आजकल जितने भी योगाचार्य हैं यही हमें सलाह देते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले 1-2 गिलास पानी उनको पिए. उसके बाद आप दिनचर्या जो है उसको स्टार्ट करिए. जो लोग घर में टहल सकते हैं, जिनके पास स्पेस है, घर में टहलिए. और उसके बाद लघु शंका से निवृत्त होकर योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए. हर आदमी सोच रहा है कि आजकल योग के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, बताया जा रहा है. तो इस माध्यम से मैं आपको ये कहूंगा कि योग जो है वो भी आयुर्वेद का एक पार्ट है.
क्योंकि कुछ साइंस जो है, जो हमारी एलोपैथी साइंस है, वो कुछ लिमिटेशंस तक है। जैसे मैं आपको एक श्लोक के माध्यम से हम आपसे ये बात शेयर करेंगे। सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय स्वस्थिति विधीयते। हमारे शरीर में जो दोष, वात पित्त कफ, ये बराबर अवस्था में हो, सम हो। धातु, हमारी जो सपत धातु है वो नॉर्मल हो। रक्त रस रक्त रस मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र। मल क्रिया, जितने भी हमारे मल हैं वो प्रॉपर तरह से हमें निष्कासित हो रहे हों। यहां तक जो हमारी दूसरी साइंस है वो टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये बता देती है कि जी आपकी टेस्ट रिपोर्ट में ये आया है, आपके ब्लड में ये है, आपके यूरिन में ये है, और आपकी स्टूल में ये प्रॉब्लम है। इससे आगे वाली जो अवस्था है उसमें योग और आयुर्वेद, समादोषा समग्नि समधातु मल क्रिया, यहां तक तो ठीक है। वहां से आगे प्रसन्न आत्मा इंद्रिया स्वस्थिति विधीयते। हमारी आत्मा मन अगर प्रसन्न है तो ही हम उसको कहते हैं ये व्यक्ति स्वस्थ है। आत्मा और मन जो रोल है, मन को कंट्रोल वाला जो रोल है वो योग के शुरुआत में बताया गया है। तो इसीलिए सुबह उठ के योग, ध्यान और मेडिटेशन, इसका अगर आप जीवन में लाते हैं तो ये पुख्ता है कि हमारा जो लाइफ है, जो लाइफ स्पैन है वो बढ़िया निकलेगा और हमारी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। उसके बाद जो हमारी बॉडी में मसाज, उसका बहुत बड़ा रोल है। हम खाने की, पीने की, सभी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन शरीर पर मालिश का जो फायदा मिलता है वो अद्भुत है। डाइट में अगर कुछ चीजें हम कम मात्रा में भी ले रहे हैं या प्रॉपर भरपूर मात्रा में हमें कोई चीज नहीं मिल रही है, कोई ना कोई कमी आ रही है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग और खुद आगे वाले जो आपके मिलने वाले लोग हैं या आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, तो उनको ये जरूर प्रोत्साहित करिए कि सुबह बॉडी की मसाज, शरीर की मसाज, वो कोई भी ऑयल हो, तेल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, कोई भी तेल हो, इससे 5-10 मिनट मसाज करने के बाद आप फिर जरूर नहाइए। खान पान में फ्राइड जितना भी है या डिब्बा बंद कोई भी चीज है उसको कम से कम इस्तेमाल में करिए। हमें जितना भी कोई फ्रेश फूड मिलता है
उसका इस्तेमाल करिए। हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें किचन में क्या करती हैं कि चपाती बनाने के लिए आटा थोड़ा सा बना के और फिर उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। तो कोशिश करिए उतना ही बनाइए जितना आपका यूटिलाइज हो जाए। अगर फिर भी कुछ बचता है तो उसको जरूर रख लीजिए, पर कोशिश करिए कि फ्रेश आटा बना के उसी की चपाती बनाइए। ऐसे ही कोशिश करें जितना भी हमारे में घर में फल सब्जियां जो सीजनल आ रही हैं, तो वो ज़्यादा कोशिश करोगे उसको ज़्यादा स्टोरेज ना करें। आयुर्वेद के सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए हम छोटी छोटी बातें, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, तो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे आजकल आम का सीजन है, तो आम को लाइए, आम को लाके पहले पानी में गिर दीजिए, घंटा 2 घंटे पानी में पड़ा रहे, उसको वॉश करके फिर आप उसको अगर फ्रिज में रख के ठंडा करके खाना इच्छा रखते हैं तो खा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट जो मार्केट से आपके पास आम आ रहा है उसको इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि उसके अंदर की जो गर्मी है वो बाद में आपके पाचन तंत्र को, आपके शरीर को खराब करती है। या कई बार ये होता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ उसके ऊपर कुछ केमिकल लगा के पकाया जाता है, वो भी नुकसान करते हैं। इसलिए उनको पहले घंटा 2 घंटे पानी में जरूर गिर दीजिए और फिर उनको इस्तेमाल करिए। ऐसे ही दूध और दही, लस्सी, तो इसमें हम आयुर्वेद के माध्यम से यही कहेंगे कि दूध और लस्सी दही से बेहतर विकल्प है, क्योंकि टक्कर जो लस्सी है वो हमारे जितने भी पेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े जितने भी रोग हैं उनको दूर करने की क्षमता रखती है। फल सब्जियों के इस्तेमाल के साथ साथ और जो चीज़ हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करिए कि उनको ज़्यादा मात्रा में फ्राई मत करिए। खाना बनने के बाद आपकी जो चपाती है या आपके घर में कोई दाल सब्जी जो भी आप उसको यूटिलाइज करते हैं, तो बनने के बाद उसके ऊपर मेल्ट किया हुआ थोड़ा सा देसी घी डाल के उसको इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी, किस रास्ते में हमने इसको लेके जाना है, कोविड की तरफ लेके जाना है या हमने जनरल लाइफ स्टाइल के बाद में बात करनी है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो साथ ही साथ आप उसको क्रिएट कर सकते हो, पूछ सकते हो। थोड़ा जो हमारा सेशन है वो बढ़िया हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि हमारा जो योग है और एक्सरसाइज है, दोनों एक तरफ से एक ही चीज है, पर मेरी मान्यता के अनुसार मैं ये समझता हूं कि दोनों का जो है भिन्न है आपस में। योग करने के साथ आपको एनर्जी मिलती है, आप एनर्जी क्रिएट करते हैं। वेर है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो जॉगिंग करते हैं या कोई और गेम खेलते हैं, तो उसमें आपका एनर्जी वेस्ट होता है। कई लोगों के हम साथ बात करते हैं, जब हम योग की बात करते हैं तो उनको इसके बारे में उनको डिफरेंट डिफरेंट विचार होते हैं। तो मेरे विचार से ये है कि इसका जो मूल है, जिसको हम कहते हैं कि ये मूल बंध से स्टार्ट होता है, तो वहां से शुरू करके योग को जब हम इसको समाधि तक लेके जाते हैं, तो हमारे शरीर में एक नए तरह की ऊर्जा पैदा होती है।
ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस पर अभ्यास किया हो। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि अच्छे जीवन को जीने के लिए इसका थोड़ा 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 डेली यूज पर धीरे धीरे इनको अपने जीवन में लाइए, ताकि आप उस जीवन को अपने को संपूर्ण कर सकें। दूसरी तरफ हम आयुर्वेद के साथ, जो आजकल हमारा ये पैनाडेमिक चल रहा है, इसके साथ मैं आपको कहूंगा कि आयुर्वेद में मिलने वाले द्रव्य या जड़ी बूटियां या मेडिसिन, इनका फायदा अत्यंत है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्राय मात्रा में हमारे घर की किचन में हमें सब कुछ मिल जाता है। अगर वो हमारे किचन में थोड़ा बहुत कुछ नहीं भी होता तो हम आस पड़ोस से, किसी डिस्पेंसरी से, इवन के जो आपके घर में माली काम करता है, वो इसके रिलेटेड दो चार जो चीज हैं जो इसमें यूज होती हैं, अश्वगंधा की रूट हो गई, ग्लोए होगी, टीनोस्पोरिया गॉर्डिफोलिया, तुलसी होगी, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपके पास कोई मेडिकेटेड ऑयल नहीं है, आप मस्टर्ड ऑयल को, सरसों के तेल को, देसी घी को एक दो चार ड्रॉप आप सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर इनको इनहेल कर लेते हो, दो चार ड्रॉप नाक में डाल लेते हो, तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको दे सकता है। हल्दी हर घर में होती है, थोड़ी सी हल्दी घर में जितना भी दूध आ रहा है आप उसमें डाल दीजिए और उसको बॉयल होने दीजिए। जब वो अच्छी तरह बॉयल हो जाता है, फिर वो पीने के लिए आप इस्तेमाल करिए। बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी आपकी बिल्ड करेगा ये। अश्वगंधा की रूट्स, वो अगर आपको नहीं मिलती तो अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल, एक ग्राम से 5 ग्राम तक चूर्ण दूध के साथ, या एक कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ अगर इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके साथ साथ अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस में हमारे यहाँ एक मेडिसिन आती थी पहले, आयुष 64, आई थिंक वो 90-80 के करीब हमारे जो गवर्नमेंट की रिसर्च में उसमें मलेरिया के लिए उसको इजाद किया गया था। लेकिन इस पैनाडेमिक के अंदर या इस पैनाडेमिक के पहले हमारी डिस्पेंसरीज में जितने भी पेशेंट आते थे जिन्हें को कफ, कोल्ड और फीवर ऐसे सिम्टम थे, तो हम उनको देते थे, तो उनका विद इन 7 डेज 5 डेज बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता था। लेकिन पिछली हमारी इतने साल की जो हमारी सर्विस के दौरान हमने लोगों की सेवा करी है, अब जाके पता चला है कि इसके अंदर भी उसके बहुत बढ़िया इफेक्ट हैं।
तो इसलिए अब प्रोटोकॉल में जो है हमारी IU64 या टेबलेट IU64, उसकी 2 टेबलेट सुबह शाम, ये आप 10-15 दिन तक ले सकते हैं। आपको बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा इससे। और इसके साथ हमारे जो है गड़ूची घनवट्टी या संशमनी वट्टी, गिलोय को जो नेशनल प्लांट घोषित किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, उसके घन से ये एक्सट्रैक्ट से ये टेबलेट बनाई जाती है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में बहुत ही कारगर है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हम लाइफ में यूज करते हैं, तो इस पैनाडेमिक में हमें इन चीजों से बचने से बच सकते हैं अगर हम इसका डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहें। दोपहर के खाने के बाद जो हमारा तक्कर होता है, लस्सी होती है, उसका इस्तेमाल आपकी हेल्थ के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ही कारगर है। दोपहर का खाना खाने के बाद 5-10 मिनट तक रेस्ट करना आपकी हेल्थ को और इंप्रूव कर सकता है। रात का खाना कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके अर्ली उसका इस्तेमाल करिए। मैंने देखा है कि कई लोग शाम को खाना खाने के बाद लंबी सैर करते हैं। इस चीज को थोड़ा रोकना चाहिए। सैर जो है वो खाना खाने से पहले करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज्यादातर हमारा खाना को डाइजेशन करने में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए खाना खाने से पहले आप सैर करिए, सैर करने के बाद आके थोड़ा रेस्ट करिए। जितने देर आपने सैर करी है उससे आधा टाइम रेस्ट करिए। फिर आप हो सके तो आप नहाइए मौसम के अनुसार। नहाने के बाद फिर आपका शाम का जो रात का भोजन है वो करिए। ऐसे करने से जो आपकी हेल्थ है और बढ़िया होगी। रात को लेट आवर तक कोशिश करो कि लेट आवर तक जागना आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है, डिटीरियोरेट कर सकता है। तो कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ काम है तो वो रात के 12 बजे से पहले पहले निपटा लो। कोशिश करो कि उसके बाद वाला जो टाइम है, जैसे बच्चे स्टडी करते हैं जो कि और है, तो उसके बाद वाला जो टाइम है उसमें वात की वृद्धि होती है, तो इसलिए उसके बाद वाले टाइम को कम से कम यूटिलाइज करिए। और अर्ली मॉर्निंग उठने का प्रयास करिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठने से क्या होता है, जब हम सूर्य की रोशनी सुबह वाली लेते हैं तो उसमें जो निकले वाली किरणें हैं वो हमारी बॉडी को, हमारे नेत्रों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। सुबह जब आप सैर करते हैं या आप योग प्राणायाम करते हैं तो उसमें
सूर्य नमस्कार को प्रायोरिटी पे करिए, क्योंकि उसमें थोड़े टाइम में ही आपको अच्छा परिणाम मिलता है। इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, इस के साथ रेलिवेंट कोई भी चीज़ है, क्वेश्चन है, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यस सर, रवनीत एक सवाल करना चाहते हैं। रवनीत प्लीज पूछिए। हम जैसे सर ने बोला कि दोपहर का खाना खाएं तो लस्सी पिएं, उसके साथ जैसा भी है, बट ऐसा तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि कई लोगों का है जो लस्सी पीने से इसमें गले में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या जो है उनका नर्व सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है। सर आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि लस्सी के अंदर अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई चीज़ आपको महसूस हो रही है, तो लस्सी के अंदर आप काली मिर्च थोड़ी सी डाल लीजिए या थोड़ा सा जीरा, क्योंकि जीरा एपिटाइजर होता है। और जो लस्सी में आपको लगता है कि थोड़ी सी अगर कफ है, तो वो जो है उसको काली मिर्च दूर कर देती है। जो काली मिर्च जो है वो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त और कफ तीनों का बैलेंस करती है। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा अगर उसमें जीरा भून के डाल लेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू सो और मच। इसको हो सके तो इसको थोड़ा डिल्यूट करके यूज करिए, थोड़ा डिल्यूट करके, पतला, ठीक बहुत है ज्यादा सर। थिक नहीं, बहुत ज्यादा थिक नहीं। ओके 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 सर, ठीक है, जी थैंक यू। सर आजकल फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट सभी का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। उसके लिए हम आयुर्वेदा के हिसाब से अपने डाइट में ऐसी कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं जिससे आंखों पे स्ट्रेस कम हो? जैसे आई थिंक सम, सर एक सेकंड, मेरे लैपटॉप में कोई, यस सर। तो सर जैसे हमने अपनी प्रिंसिपल मैम को भी देखा है, 8 से 10 घंटे उनका स्क्रीन टाइम रहता है सर। तो हम चाहते हैं आप कोई ऐसी सलाह दीजिए कि हम आयुर्वेदा की हेल्प से आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जी कि हमारे यहाँ रसायन कहा है, रसायन वो चीज है जो जरा और व्याधि, जरा होता है जो हमारे एज के एजिंग प्रोसेस है, और दूसरा है बीमारी। इसको दोनों को दूर करता है, और इसमें से सबसे सस्ता जो चीज है वो है त्रिफला। त्रिफला चूर्ण की जब हम बात करते हैं तो कई बार ये क्वेश्चन रेज होता है जी कि इसकी डोज हम कितनी लें, और कौन सी एज वाला जो है इंसान इसको ले सकता है। तो इसको मैं ये कहूंगा कि 1 साल से लेकर जीवन पर्यंत तक जितनी आपकी आयु है, 1 साल का बच्चा है तो उसको 1 चुटकी पर डे, 2 साल का बच्चा है तो 2 चुटकी। तो ऐसे ही अपनी आयु के हिसाब से जितनी आपकी आयु है उतनी चुटकी की डोज बना लीजिए और पर डे इस्तेमाल करिए। आपकी अकेले ये जो नेत्र की प्रॉब्लम है, आपकी आंखों की प्रॉब्लम है, इसके लिए नहीं, पूरी फुल बॉडी के लिए, आपको होल बॉडी के लिए ये रसायन का काम करेगा। दूसरा, जैसे आपने इसके बारे में पूछा, तो एक और मैं आपको चीज कहूंगा कि आप इसको घर में आप बना सकते हैं। जैसे गुरबंदी बादाम 5 पर डे, और उसके साथ छोटी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और मिश्री धागे वाली। आपने क्या करना है कि
बादाम को 24 घंटे, जैसे कट्ठे बादाम आपने 1 महीने की कोई चीज तैयार कर रखनी है तो उसके लिए आप 150 के करीब बादाम ले लीजिए गुरबंदी, और उसको भिगो दीजिए 1 या 2 दिन के लिए। और फिर उसका कवर उतार दीजिए, 1-2 दिन के लिए धूप में रख दीजिए, वो ड्राई हो जाएगा। फिर उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 से 60 छोटी इलायची, और 100 और 150 के करीब काली मिर्च, और 25-30 ग्राम धागे वाली मिश्री। वेरी गुड। इसका पाउडर बना के रख लीजिए आप, और 1 चम्मच सुबह दूध के साथ लीजिए। तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा जिससे। सर बादाम को कितनी देर तक भिगो के रखना है? 1 या 2 दिन। ओके जी, ठीक है। 24 आवर मिनिमम। ठीक है। और सर जो त्रिफला चूर्ण था उसको लेने की क्वांटिटी आपने कितनी बताई? वो है 1 साल की उम्र के लिए 1 चुटकी जी। और अगर आपकी एज 40 है तो 40 चुटकी, अप्रोक्सीमेटली ये 5 ग्राम तक पहुंच जाती है। तो उसको अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-आधा ग्राम हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सर दिन में एक बार लेना है इसको? एक बार सफिशिएंट है जी, एक बार। जी जी। वैसे भी अगर कोई चूर्ण लेते हैं तो उसकी जो डोज है वो 1 से लेकर 3 ग्राम तक होती है। हाँ जी सर, जी जी। सर एक और सवाल है चैट बॉक्स में, आंवला खाने का सही तरीका? आंवला में विटामिन सी से भरपूर है और आजकल हम कोविड-19 में विटामिन सी की बहुत बात करते हैं, लेकिन आंवला को लेकर थोड़ा सा संशय है सबके मन में कि उसको कैसे कंज्यूम किया जाए। बहुत खट्टा है, उसको हम किससे मिला सकते हैं, और क्या आंवला कैंडी एक अच्छा विकल्प है अगर हमें खट्टा लगता है तो? जब आंवले की बात होती है तो जी इसको किसी फॉर्म में ले लो, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है हमें बेनिफिट थोड़ा कम मिले, पर चाहे कैंडी के रूप में ले लो इसको, चाहे चूर्ण के रूप में ले लो, चाहे इसको मुरब्बे के रूप में ले लो, चाहे इसको क्या करो कि बॉयल करके रख लो आप। 1-2 किलो कट्ठे आंवले अगर मिल जाते हैं आपको तो इसको बॉयल कर लो। बॉयल करने के बाद इसका सीड निकाल दो, और जो इसका पल्प होता है उसमें ब्रीक ब्रीक धागे से होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें से कपड़े से या उसमें से निकाल के इसका जो पल्प भी नीचे रह जाता है वो निकाल लेना, पल्प। और उसको थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच देसी घी से इसको अच्छी तरह भून लेना। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा तो फिर उसमें जरूरत के मुताबिक, जैसे आपका टेस्ट हो उसके मुताबिक उसमें आप हनी डाल के इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं और डेली रूटीन में इसका यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। आंवले के मुरब्बे पे इसको यूज कर सकते हैं, इवन कि इसका जो अचार बनता है उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आपने आंवला लेना है, आंवला लेके उसके अंदर आपको कोई भी सिरका मिल जाए, वो शुगर केन का मिल जाए या जामुन का सिरका मिल जाए, आप उसमें डाल के डिप करके रख दो, और 3-4 महीने बाद वो रेडी हो जाएगा। पूरा साल भर आप उसका इस्तेमाल करिए, और भी बढ़िया ये। और आंवले का अगर इस्तेमाल आपने रूटीन में करना है तो 1 आंवला, जो भी आप घर में दाल सब्जी बनाते हैं, जो तरी वाली दाल सब्जी कोई भी बनाते हैं, तो 1 आंवला उसमें वैसे ही घेर दो डेली रूटीन में। नाइस। क्योंकि इसके जलने के बाद इसके गुणों में कोई कमी होना ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी फॉर्म में लेंगे ये आपको बेनिफिट देगा ही देगा। सर हमारा अगला सवाल है, कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं कि सबको पिकल बहुत पसंद है, घर में अचार सबको पसंद होता है, उसको कितनी मात्रा में खाया जा सकता है और क्या वो सेफ है? जैसे आमतौर पे कहा जाता है लड़कियों को ज्यादा अचार नहीं खाना चाहिए।
तो आपका इस पे क्या विचार है? अभी जो हमने बात करी थी उसी में, इसीलिए मैंने बताया कि जो हम ऑयल के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, ऑयल इट सेल्फ प्रिजर्वेटिव है। तो हम कहते हैं कि ऑयल में जो है, जब ये इसलिए बनाया जाता था पहले कि मजबूरी होती थी कि अब आपके पास घर में कोई खाने के लिए, अगर बनाने के लिए कोई एट प्रेजेंट चीज नहीं है तो आप इसके साथ अपना खाना जो है ले सकते हैं। तो कोशिश करिए ऑयल में बना हुआ जो कोई भी अचार है उसका कम इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने बताया ना कि आंवले को सिर्फ आपने क्या करना है, सिरका है, नेचुरल प्रोसेस्ड है, और सिरके में डिप करके रख दो, तैयार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया एपिटाइजर है, इवन के शुगर वाले पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एपिटाइट बहुत बढ़िया रहती है इससे, डाइजेशन बहुत बढ़िया रहती है। तो सर आपने आंवला को डिप करना जो बताया है उसका एक बार प्रोसेस रिपीट कर दीजिए। आंवला जी सर वो प्रोसेस रिपीट, डिप करके कितनी देर रखना है और कितना मतलब क्वांटिटी? आप उसको डिप करके रख दी, क्वांटिटी उसकी है कि उसको डिप करना है बस। 2 किलो ले सकते हैं, 4 किलो ले सकते हैं, 6 किलो ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है आपने कितना डालना है। अगर आप 10 किलो आंवला लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 365 उसमें आंवले आ जाते हैं। तो वो आपका पूरा साल, एक पर डे के हिसाब से पूरा साल का कंप्लीट हो जाता है कोर्स। सर विनेगर कौन सा यूज करना चाहिए? कुछ लोग सिंथेटिक भी करते हैं। नहीं, सिंथेटिक नहीं करना चाहिए, नो, नेचुरल। जामुन का सिरका मिल जाए या आपको शुगर केन का मिल जाए, सिंथेटिक नहीं, नेचुरल। जी सर, जी जी। सर मीनाक्षी, साशी, दीक्षा, दो ने क्वेश्चन बार बार पूछे हैं चैट पे। मैम नंदिनी ने भी पूछा है। साशी का, साशी आप अनम्यूट करो बच्चे, अपना क्वेश्चन बताइए। साशी। सर एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने अभी बताया था कि रात तक हमारा जैसे पूरे दिन में भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ कोविड की क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं एंड देन हम फ़ोन भी यूज़ करते हैं एंड देन हम रात तक भी जगते हैं। सो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो सर ऐसे और क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए एज स्टूडेंट्स कि हमारी फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल? उसके लिए बेटा आप मेडिटेशन, भ्रामरी प्राणायाम और मसाज, ये 3 चीज का इस्तेमाल करिए। साथ के साथ आप अश्वगंधा या शतावरी, शतावर आपके लिए बहुत बेस्ट है बेटा। शतावर जस्ट लाइक ए, जैसे हम मूली खाते हैं ना, मूली, तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसी ऐसी रूट्स होती हैं उसकी। आप उनको फ्रेश दूध में बॉयल करके भी ले सकते हो, और आप अगर वो ड्राई मिलती हैं तो उसका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हो दूध के साथ। और मार्केट में ये ग्रेन्यूल्स के माध्यम से भी आपको मिल सकता है, तो दूध में उसको फेंट के शेक करके, जैसे बॉर्नविटा है ऐसे आप यूज कर सकते हो। और कोशिश करो जैसे आप ये प्लीज कंटिन्यू। और कोशिश करो जैसे आप कोई मील लेते हैं ना, तो मील से पहले एक आधी खजूर ले लिया करो। एक आधा खजूर खाया और उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी पिया, 1-2 घूंट, और फिर 10-15 मिनट बाद आप खाना खा सकते हो। सर काफी बच्चों ने बात की है कि जैसे फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, हम कैरी भी करते हैं या कई बार उसको कट करके काफी देर तक रखते हैं, तो क्या हम फ्रूट्स को काट के बाद में खा सकते हैं कि या फ्रूट्स को फ्रेश काट के ही खाना चाहिए? जैसे बहुत बार हम कैरी भी करते हैं, कॉलेज आए हैं या लंच के लिए लेके गए हैं, फ्रूट्स को जब हम काट के यूज करते हैं बॉक्स में बंद करके। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम फ्रूट को उसी टाइम काट के खाएं, कोशिश यही होनी चाहिए। पर कई बार हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे साथ नहीं होते, लेकिन ऐसे कि फ्रूट्स को काट के फ्रिज में रख के, वो ठीक नहीं है। पर्टिकुलर कुछ ऐसे जैसे बनाना हो गया, कई लोग बच्चे बनाना की स्मूदी बना के खाते हैं, तो वो बहुत ही आपकी डाइजेशन के लिए बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेते हैं बाद में। जैसे पपीता हो गया, इसको बहुत ज्यादा देर तक काट के ठंडा करके फिर नहीं खाना चाहिए। और जैसे आपने केला खाया, केला बनाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए,
कटहल खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, मच्छी खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, पराठे के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जीवन को बढ़िया कर देती हैं। थैंक यू सर। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है, संध्या, कौन सा कुकिंग ऑयल अच्छा है हेल्थ के लिए? कुकिंग ऑयल? जी सर। सबसे अच्छा है जी देसी घी, वो भी गाय का। हम ये कहते हैं कि गाय का घी है जो हमें बहुत कॉस्टली मिलता है, हमने उसकी क्वांटिटी नहीं देखनी। आप पूरे परिवार के लिए अगर आप पूरे एक टाइम के खाने में अगर 1 या 2 चम्मच इस्तेमाल करते हैं वो भी सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है, कम क्वांटिटी में यूज कर लीजिए, लेकिन देसी घी ही यूज करिए। कोशिश करिए अगर हो मिल सके तो गाय का। और सबसे ज्यादा तो मैं यही कहूँगा हम फ्राइड के अंदर ध्यान देना ही कम। जो भी आपने बनाना है बना के उसके बाद में आप उसमें खाने टाइम थोड़ा सा उसमें ऊपर से देसी घी डाल लीजिए। जी सर। सर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा है कि आजकल सबको एलर्जिक बहुत हो गए हैं, छींके आना, गले में दर्द होना, लंग्स में दर्द होना या पोल्यूशन का इफेक्ट होना, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उस पे हम कंट्रोल कर सके अपनी एलर्जी? उसके लिए हमारे यहाँ है जी त्रिकटु। त्रिकटु में होता है सौंठ, पिपली और काली मिर्च। सौंठ होता है हमारा अदरक का पाउडर, पिपली जिसको हम मग बोलते हैं, और काली मिर्च। इसको हमने इक्वल क्वांटिटी में लेना है, बराबर मात्रा में। अगर आप इसमें एक ग्राम के हिसाब से लेते हैं तो ये 1 महीने के लिए 30 ग्राम, अगर हम तीनों को मिला लेते हैं तो ये 90 ग्राम हो गया। तो 90 ग्राम आप 1 महीने के लिए कंप्लीट डोज हो गई आपकी। इसको चाहे आप 5 दिन ले लीजिए, चाहे आपको 10 दिन ले लीजिए, चाहे आप 1 डोज पर डे लीजिए, 1 से 1.5 ग्राम चूरन। अंशिका पूछना चाहती है मीनाक्षी। अंशिका। यस मैम। अंशिका मैम, उससे पहले 2 क्वेश्चन और है, फिर मैं अंशिका के क्वेश्चन पे आती हूँ। सर फ्रूट और मिल्क बहुत आज जैसे बच्चे शेक्स बहुत पसंद करते हैं, कौन कौन से फ्रूट्स को दूध में नहीं मिलाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? कोई ऐसा फ्रूट पर्टिकुलर या हम सबको मिला सकते हैं? देखो ऐसे है जी, मैं ये कहूंगा कि शेक कोई भी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि शेक करने से जो भारी हो जाता है और उसमें पाचन जो हमारा है, पाचन सिस्टम खराब होता है। आप पहले कुछ चीज खा के उसके बाद में अगर तो जैसे आप बनाना खा लेते हैं, बनाना खाने के बाद आप आधा घंटे बाद दूध पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आपने आम खाया, आम खाने के बाद आप दूध पी लो, तो जो क्या होता है, आम की जो गर्मी होती है, जो पित्त होती है, वो हमारे तंग नहीं करती, हमारी बॉडी में पित्त नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे जो पुराने बुजुर्ग है, वो तो हमारी माता तो ये कहती थी कि अगर आपने आम ज्यादा खा लिया, 2, 4, 6 आम खा लिए, तो ये लो 1 गिलास दूध पी लो। तो जब हम इकट्ठा मिला के देते हैं तो वो हैवी हो जाता है, वो देर में हमारे जो है वो उसको हम देर में डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि उनका अलग अलग इस्तेमाल करिए। बच्चों को ये समझिए कि उसका अलग अलग इस्तेमाल करो। अगर आपने उसका शेक बनाना ही है तो दूध में जो है वो शतावर आता है, शतावर डाल के उसका शेक बना के पी लो। सर अंशिका एक सवाल पूछना चाहती है कि क्या आयुर्वेदा में पीसीओएस को भी ठीक किया जा सकता है, या इंजेक्शंस और हार्मोनल पिल्स के बिना भी क्या पीसीओएस को आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, हमारे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं तो हम उनको किसी को भी हार्मोन्स वाली कोई मेडिसिन ऐसी नहीं देते।
पर्टिकुलर जो डायरेक्ट हार्मोन कुछ नहीं देते, हम सिर्फ हर्बल मेडिसिन देते हैं जिससे उसको नॉर्मल लाइफ जीने से और इनसे ठीक होने से इससे निजात मिलती है। सर क्या घर पे कोई ऐसी रेमेडीज या फूड, यस अंशिका बोलो बेटा, आप खुद ही बात कर सकते हो। Thank you, ma'am. Hello, sir. Actually, I'm getting treatment for my PCOS in last 3 years, and like, sir, my PCOS it's like very extreme. एक बार ovaries में cyst भी मेरे बन चुका है, and like, but then वो medicines के through cure हुआ था, and like I have to go for my ultrasound and my blood test in every 2 months, and they check all my hormonal levels. So मेरा जो FSH और LH hormone का level है वो कई बार काफी extreme cross कर जाता है. Sometimes it's like 30-40 इतना ज्यादा. Then I have to take special हार्मोनल, पहले हार्मोन कम करने की पिल्स लेनी होती है, फिर वो बहुत कम हो जाता है, फिर बढ़ाने का इंजेक्शन अलग से लेना पड़ता है, तो वेट कभी इंक्रीज होता है कभी डाउन होता है. इसको नेचुरली कैसे क्योर कर सकते हैं कि लाइक पूरी लाइफ के लिए इस पर्टिकुलर प्रोसेस से फ्रीडम मिल जाए? बेटा मैं आपको यही कहूंगा, आप हर्बल रेमेडी की तरफ जाइए, और इसमें ऐसा है कि डिफरेंट जो मेडिसिन तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि एक तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि शायद आप उस टाइम सुन रहे हैं या नहीं मेरे को ये नहीं पता, एक तो त्रिफला चूर्ण जो है उसका इस्तेमाल करिए आप, और एक रसौंत आती है, रसौंत उसका चने के दाने के बराबर एक टुकड़ा रात को सोते टाइम पानी के साथ, इसका इस्तेमाल जरूर करिए। और जैसे हमारे यहाँ मेडिसिन आती है, हर्बल मेडिसिन आती है, चंद्रमा बट्टी या अशोका रिस्ट, दशमूला रिस्ट, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और कचनार के जो फूल आते हैं उनको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जी के तौर पे बना के, या कचनार की जो छाल है उसकी गुग्गल आती है, कचनार गुग्गल, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है बेटा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जहां भी रहते हैं नियर अबाउट जो भी आपके फिजिशियन आयुर्वेद का, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में 10-12 डिस्पेंसरीज हैं, तो वहां आप कंसल्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। फर्दर कोई हेल्प की जरूरत होगी तो वो डॉक्टर मेरे के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। थैंक यू सर। सर बच्चों का क्वेश्चन है, जैसे टी कॉफी कितनी मात्रा में ले सकते हैं, कितना हार्मफुल है, और बच्चों को आदत होती है रात को भी पढ़ाई करते समय कॉफी पीते हैं बच्चे, तो उसमें आपका व्यू पॉइंट क्या है? जब हम इनके गुणों की तरफ जाते हैं ना जी, तो इसमें बताया हुआ है, आयुर्वेद में बताया हुआ है, कफ कर्तन वायुहरण। कफ कर्तन वायुहरण मतलब कफ का ये है, कफ को कम करती है। और जो वायु क्या होता है, वायु के कारण हमारी बॉडी में एक होती है, सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, बॉडी एक हो गया, या हमारे गले में कोई दिक्कत है, खांसी आ रही है, तो इनके लिए तो ये ठीक है। अगर कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम है उस टाइम तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये 2 फायदे हैं, लेकिन नुकसान क्या है इसका, जो हमारी बुद्धि है, हमारी धातु है और हमारा बल, ये तीनों का क्षीण होता है। क्षीण का मतलब तीनों डिटीरियोरेट होती है, तीनों में कमी आती है, हमारी धातु पुष्ट नहीं होती, हमारा बल कम होगा और हमारी बुद्धि का ह्रास होगा। तो इसलिए हम बच्चों को यही कहेंगे कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कहीं बॉडी एक हो रही है, आपके गल में कहीं कफ तंग कर रही है आपको, तो उस टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि इसका कम से कम इस्तेमाल करें। जब आपको लगता है कि नींद आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम आप थोड़ा सा पानी 20, 30, 40 ml पानी पिए, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जी सर। सर सुबह के नाश्ते में दूध और शाम को सोते समय दूध दोनों लेना ठीक है? एक बच्चे का सवाल है। सुबह का जो दूध है, सुबह हमारा जो आयुर्वेद के सिद्धांतों में मुताबिक सुबह हमारा कफ का सीजन होता है, तो उसमें कफ बढ़ता है। अगर आपने सुबह दूध का इस्तेमाल करना है तो कोशिश करो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा हल्दी या अदरक, उसको बॉयल करके ले ले। अगर आपके पास ये टाइम नहीं है, बॉयल करने का जैसा कुछ नहीं है, तो कोशिश करो कि एक खजूर खा के उससे साथ आप दूध पी लो,
तो वो ठीक है। और शाम को जो है 5-6 बजे बिफोर सनसेट, शाम को जो दूध है 5-6 बजे, वो भी एक अच्छा वक्त है दूध पीने का। या बच्चे खेल के आते हैं उसके बाद उनको दे सकते हैं। कोशिश करिए कि उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, आजकल तो बहुत कुछ मिल रहा है मार्केट में, हल्दी अंदर दालचीनी और सारा कुछ मिक्स बना है, वो बहुत कुछ मिलता है, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर डाल के वो बॉयल करके वो बच्चों को दीजिए। थोड़ी मात्रा में दीजिए रोज, लेकिन थोड़ी मात्रा में। जी सर आपने जो एंटी एलर्जिक वाला एक चूर्ण बताया था, एक ने दोबारा सवाल किया है, सौंठ, काली मिर्च और तीसरी चीज क्या थी सर? पिपली, सौंठ, पिपली और काली मिर्च जी, जो हर किचन में होती है। और सर इक्वल क्वांटिटी में हमने इनको मिक्स करना है? हाँ जी, इक्वल क्वांटिटी में इनके पाउडर ले लें जी, और इक्वल क्वांटिटी में कर लें। और सर 1 ग्राम पर डे। जी, 1 ग्राम पर डे, ठीक है सर। दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं। जी, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है कि जो आजकल ओबेसिटी की प्रॉब्लम है बच्चों में, ओवर वेट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, और शायद वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी रिलेटेड है या डाइट से रिलेटेड है, तो वेट को कंट्रोल में रखने के लिए कोई उपाय है, कैसे किया जा सकता है? ये बच्चों का सवाल है। एक तो जो दूध है जी वो हल्दी वाला दे, उसी चीजों को रिपीट करूंगा मैं। दूसरा जो है 3 कद्दू चूरन 1 ग्राम पर डे, और एक टाइम में त्रिफला चूरन, और साथ में दही कम मात्रा में, राइस भी कम मात्रा में। थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते हो, घर पे ही जंपिंग कर सकते हैं या स्किपिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जितनी भी मूवमेंट हो सकती है तो ये मूवमेंट करें। और साथ में ये जो तीनों चीजें बताई हैं, ये अगर तीनों चीजों के इस्तेमाल करेंगे, मेरा विश्वास है इससे बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। सर फ्रूट और सैलेड को खाने का दिन में सही समय क्या है? फ्रूट या सैलेड जो भी हम खाते हैं। अर्ली मॉर्निंग फ्रूट जी, सुबह। ओके जी, सुबह के वक्त आप फ्रूट ले सकते हैं। दोपहर के खाने में, दोपहर के टाइम, शाम तक आप 4-5 बजे से पहले आप सलाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए फ्रेश लीजिए, कम मात्रा में लीजिए। हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा किलो 2 किलो इकट्ठा रहता है। कोशिश करो कम से कम लो जो एक ही दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि जो पीछे से मार्केट में आता है वो भी पहले पता नहीं कितने दिन से होता है। तो कोशिश करें कम से कम लें और उसी दिन यूटिलाइज करें उसका। यस सर। और स्प्राउट्स का जरूर इस्तेमाल करें। जो हम अपना सैलेड बनाते, सलाद बनाते, उसमें स्प्राउट्स जैसे मूंग का हो गया और चने का हो गया। चना कम डालिए, मूंग थोड़ी ज्यादा डाल लीजिए। तो इसका इस्तेमाल जो है, इसमें थोड़ा सा खीरा डाल लीजिए या टमाटर डाल लीजिए, तो उसको मैश करके मिक्स करके आपस में तो ये दे सकते हैं बच्चों को। दीक्षा आपका सवाल बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को और पूछो। गुड आफ्टरनून सर। सर लाइक कभी कभी हाथ और पैर बहुत सुन्न हो जाते हैं, मतलब नमनेस लाइक हो जाता है, तो फिर कोई होम रेमेडीज है? बट सारी यूरिक एसिड वगैरह सब नॉर्मल आया है। हाँ बेटा, अंडरवेट की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो कह रहे हैं हाथ पैर कभी कभी उनके सुन्न हो जाते हैं, यूरिक एसिड वगैरह नॉर्मल है, बट नमनेस हो जाती है हाथ पैरों में बहुत बार। जी, इसमें आप इनको अश्वगंधा और शतावर, इनका चूर्ण आता है, दोनों को मिक्स करके भी दे सकते हैं। 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम दोनों मिक्स करके दूध के साथ सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं बेटा आप। अश्वगंधा और शतावर। ओके सर। सर क्वांटिटी उतना ही आपने सर जो 1 ग्राम बोला है ना, 1 से 1.5 ग्राम। जी सर जी, 1.5 ग्राम मैक्सिमम 3 ग्राम। ठीक है सर, राइट। सर नंदिनी आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। हेलो जी बेटा। नमस्कार सर। नमस्ते बेटा।
सर एक्चुअली आपने मालिश का बताया था, तो जी बेटा। सर मेरे मदर को ना वेरिकोज वेन्स हैं नीज के नीचे काफी ज्यादा। जी तो कुछ मतलब पहले कोई कहता है कि करवाओ मालिश, पर किसी ने कहा कि मालिश करवाओगे तो ये फट जाएंगी। जी, उनके लिए बेटा, उनके लिए जो है लोअर पोर्शन को छोड़ के अपर पोर्शन में आप मसाज कर सकते हैं। ठीक ठीक है लोअर सर। पोर्शन में मत करिए, ओके अपर पोर्शन में करिए। और थोड़ा सा उनको कहिए कि हल्का सा धीरे धीरे अनुलोम विलोम स्टार्ट करें। ठीक है सर। सर धीरे धीरे, एक तेजी क्वेश्चन ना और करें, था मेरा। तेजी ना करें, धीरे धीरे करें और धीरे धीरे बढ़ाएं इनको। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे गर्मियां आती है ना तो सर मेरा बीपी बहुत ज्यादा डाउन जाने लग जाता है। और जी अब जैसे 3-4 दिन से ये प्रॉब्लम आ रही है कि भूख भी नहीं लग रही, बहुत ज्यादा सो रही हूँ मैं कंटिन्यूसली 12-12 घंटे, मतलब दोपहर को भी सोना रात को भी सो जाना, बहुत जल्दी ना भूख इतनी लग रही है, और मेरे यूरिनेशन का कलर भी बिल्कुल येलो है। तो मुझे मतलब था शक कि शायद जॉन्डिस ना हो सर, वो समझ ही नहीं आ रहा है। आप ऐसे करना बेटा, जीरा ले लेना, जीरा, ठीक है सर। जीरे को क्रश कर लेना, ठीक है पाउडर सर। बना लेना, उसके ठीक है। अंदर पुदीने के पत्ते, ओके। और फिर उसके अंदर इमली, इमली भिगो के ना उसका हाँ जी पानी सर। बना लेना, वो उसके अंदर डाल लेना, तो एक चटनी सी बन जाएगी। ठीक इसका है सर। 1-1.5 चम्मच सुबह शाम खाने के साथ इस्तेमाल करो। और या फिर इसको पानी में डाल के ना, ऐसा इसका बन जाता है जैसे जल जीरा होता है। ठीक है सर। इसको एक दिन में 1 बार या 2 बार जरूर पियो। सर जीरा को पहले भूनना है या ऐसे नहीं नहीं, मतलब भुना भूनना नहीं, हुआ तो? कच्चा बेटा, कच्चा कच्चा, भूनना नहीं। ठीक है सर। जीरा, पुदीना और इमली, ठीक है सर। तीनों को मिक्स करके ना, तो वैसे भी चटनी के तौर पर खा सकते हैं इसको, और पानी में इसको घोल के 1 गिलास में 1 चमचा घोल के, और इसको जलजीरे के टाइप में हल्का सा नमक और काली मिर्च टेस्ट के मुताबिक डाल के उसको भी पी सकते हैं बेटा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। जी बेटा। साक्षी प्लीज बच्चे पूछो सर, हमारा इवेंट यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है, वहां से भी 2-3 सवाल हैं। हाँ जी। साक्षी बच्चे पूछो। यस मैम। सर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि उनको किडनी में स्टोन है एंड साथ में उनको उस वजह से फीवर भी आ रहा है, तो उसके लिए मेडिसिन आप सजेस्ट कर दें। स्टोन और क्या बेटा? स्टोन है, स्टोन सर किडनी में स्टोन है सर एंड किडनी उसकी में वजह से स्टोन फीवर है भी आ और रहा है। फीवर। इसके लिए बेटे सबसे बढ़िया है कि आप मार्केट से गोक्षर ले आओ, गोक्षर, और उसको क्रश करके ना उसका पाउडर बना लेना। घर में मिक्सी में बना सकते हैं या वैसे उसको फोड़ के कूट के बना सकते हैं। तो 1 से 1.5 ग्राम 3 ग्राम तक इसको पानी में बॉयल करके जब 1/4 रह जाए तो इसको ठंडा करके छान कर इसको दे सकते हैं, दिन में 1 बार बेटा। थैंक यू सर। सर क्या हाइट बढ़ाई जा सकती है? लक्ष्यता का सवाल है, 18 इयर्स के बाद भी। इसके लिए बेटा आपको 2-3 चीज की सलाह दे रहा हूं आपको। एक तो मैंने आपको पहले बोला अश्वगंधा और शतावर, इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करो। स्किपिंग करो, साइकिलिंग करो, और प्रोटीन थोड़ी सी अधिक मात्रा में करो इनटेक। यस सर। आपको रिजल्ट मिलेंगे बेटा, पक्का मिलेंगे। थैंक यू सर। साक्षी प्लीज बच्चे पूछो। ये सर एक और क्वेश्चन था सर कि कोकोनट वाटर अवॉइड करना चाहिए अगर रेनल फंक्शन थोड़ा स्लो है। दोबारा पूछना बेटा। सर एक ये किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या कोकोनट वाटर अवॉइड करना चाहिए अगर रेनल फंक्शन थोड़ा स्लो है। स्लो का मीनिंग क्या बेटा? कोई किडनी में प्रॉब्लम है?
सर एक्चुअली ये क्वेश्चन यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे आया है किसी का। नहीं, अगर तो कोई किडनी में दिक्कत है, अगर तो उनके कोई सीरम क्रिएटिनिन ब्लड यूरिया अगर बढ़ा हुआ है फिर तो हम इसको पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूस एक बारी में ज़्यादा मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके 20 ml जो है आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका यूज कर सकते हैं। अगर किसी कारण उसको दिक्कत है, कोई उनके अंदर कोई और प्रॉब्लम है, फिर वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर हाउ टू यूज दीज गेलॉय टैबलेट्स? जी बेटा, जो आपने गेलॉय के टैबलेट्स बोला यूज करने के लिए, उनको कैसे यूज करना है? हाँ, उसको मॉर्निंग इवनिंग बेटा खाना खाने के बाद 2 टेबलेट मॉर्निंग और 2 टेबलेट इन द इवनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है कि अंडरवेट को क्या आयुर्वेदा के हिसाब से कुछ किया जा सकता है? अंडरवेट बच्चा है, कैडेट योग्यता हुड्डा, शी इज आस्किंग कि अंडरवेट के लिए क्या किया जा सकता है? अंडरवेट के लिए जी मैंने शतावर और अश्वगंधा दोनों उनके लिए अच्छे हैं, और उनके साथ साथ वो अगर बनाना और दही कर्ड इसका इस्तेमाल इनटेक करेंगे तो, और देसी घी, ये 3 चीजें हैं जो वेट को बढ़ाने में सक्षम है। सर हमारी ऑडियंस में एक 9 ईयर बॉय भी है छोटा सा, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। यस बच्चे बोलो, यहाँ से हिंदी में बोलो। नमस्ते करो। कैसा हमें कौन सा फ्रूट हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है खाने के लिए? क्या पूछ रहे हैं? कौन सा फल हमारी हेल्थ के लिए फ्रूट खाना चाहिए सबसे ज्यादा, क्योंकि मम्मा सारा दिन फ्रूट खाने के लिए बोलती है। ओके ओके ओके, तो इनको टाइम टू टाइम जो भी इनको अच्छा लगता है। कौन कौन से फ्रूट अच्छे लगते हैं बेटा? मैंगो और वाटरमेलन। मैंगो आप खा सकते हैं, लेकिन जब मैंगो आता है घर में पहले उनको पानी में घेर दिया करो, ठीक है? 2-3 घंटे पानी में पड़ा रहने दो, फिर उसको मैंगो को खाओ, और मैंगो खाने के बाद थोड़ा सा दूध पी लिया करो। सर जब भी मैंगो खाता है, मैंने इसको बहुत बार नोटिस किया है कि इसको नोज ब्लीड होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि उनको पानी में घेरो। हाँ जी। पानी में घेरने से उसका जो पित्त है वो कम हो जाएगा, गर्मी उसकी कम हो जाएगी जी। और फिर इसी के साथ दूध, जो मैंने दूध बोला है, दूध देंगे तो इससे धीरे धीरे इसको रिलीफ मिल जाएगा। और साथ में अगर इसमें ये चीज महसूस हो रही है तो साथ में इसको अनार या गाजर का जो जूस होता है, जो पहाड़ी गाजर आती है, उसका जूस भी दे दो इसको, गुलकंद दे दो इसको। दूध कैसा पीना है, ठंडा या गर्म करके? ठंडा ठंडा, गर्म ठंडा। हाँ, दूध नॉर्मल, बहुत चिल्ड नहीं देना, नॉर्मल टेम्परेचर होगा। बहुत बढ़िया सर, इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है सारी बातों का ना, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसको एंड करने का। लेकिन अब मैं सीमा मैम से गुजारिश करना चाहूंगी कि वो आए और सर को फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स हमारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से करें। यस मैम। सर्वप्रथम वेबिनार में सम्मिलित सभी को नमस्ते, और छात्राओं को, बच्चों को प्यार। और बहुत बढ़िया वक्तव्य, बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और लाभकारी रहा। सर ने आयुर्वेदा की बहुत बढ़िया जानकारी दी। शरीरम अध्य खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद का महत्वपूर्ण योगदान है। इस सृष्टि की सभी वनस्पति ईश्वर का वरदान है, इनसे ही सुस्वास्थ्य पाना यह देती जीवन दान है। तो सर हम आपके अत्यंत आभारी हैं। सर आपने बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण नुस्खे हम सभी को बताए,
जो सभी के लिए लाभकारी होंगे। सर, आपने आयुर्वेद की विविध जड़ी बूटियों, औषधियों से अवगत कराया और रसोई में ही विद्यमान चीजों से आरोग्य हो सकते हैं, इसकी जानकारी दी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका वक्तव्य बहुत ही बढ़िया, लाभकारी और हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा। आपको सादर आभार। और मैं यहाँ अब हमारे प्रिंसिपल मैम की भी अत्यंत आभारी हूँ कि जिनके दिशा निर्देश में हम ऐसे कार्यक्रमों को, गतिविधियों का आयोजन करते हैं और उनके द्वारा हम गतिविधियों का और ऐसी गतिविधियों के लिए वो हमेशा ही हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। और कार्यक्रम में सम्मिलित सुमन महाजन मैम, भावना मैम और इस कार्यक्रम की सह संयोजक डॉक्टर मीनाक्षी राणा और डॉक्टर प्रीति और अन्य सभी शिक्षकों की और देश विदेश से सम्मिलित इस कार्यक्रम में शिक्षकों और अन्यों सभी का मैं तह दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चरित्र निर्माण समिति की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और कार्य जो है बहुत ही इंटरेक्टिव वक्तव्य रहा और सर ने बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी, लाभकारी सर का वक्तव्य रहा। और सर, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी छात्राएं जो है आपके इस वक्तव्य से लाभकारी होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संक्षेप पे मैंने अभी कुछ पंक्तियां लिखी है, अगर समय हो तो मीनाक्षी 2 मिनट बोल सकती हो? यस मैम, यस जरूर। हाँ, सर के उसी से मैंने लिखी है, पर मैंने इसको साथ में नाम दे दिया आयुर्वेद बनाम एलोपैथी। आयुर्वेद करे दीर्घायु, जीवन को करे आनंद से भरपूर, सिखाए नियमित खान पान, दिलाए हर दर्द से निजात, समय पर खाते हो, समय पर सोते हो, कर्म योगी का जीवन निभाते हो, तो कहाँ दुख दर्द और पीड़ा। प्राकृतिक जड़ी बूटी से निर्मित औषधि, दादी माँ के नुस्खों से युक्त औषधि, ऋषि मुनियों की है अद्भुत खोज, ऊर्जा युक्त जीवन रखता कायम जोश। आयुर्वेद जड़ी बूटियों का औषधालय, नाम है उसका वटी। एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सालय, नाम है उसका कैप्सूल। आयुर्वेद में उपचार के साथ बचाव, एलोपैथी में उपचार पर नहीं बचाव। डॉक्टरों का भी है मानना, कहें चलो आयुर्वेद की ओर। दोनों का अपना अपना महत्व है, पर एक धीरे धीरे असर करे पर होना किसी तरह का भी साइड इफेक्ट, और दूसरी तुरंत परिणाम दे पर दे जाए ढेरों साइड इफेक्ट। तो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जीवन शैली मांगे जीवन यापन में परिवर्तन। चलो योग प्राणायाम ध्यान की ओर, चलो योग प्राणायाम ध्यान की ओर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सिंपल वे में आपने बहुत सारा एक खजाना यहाँ पे आज शेयर किया, और कॉलेज की तरफ से हमारी प्रिंसिपल मैम भी अभी यहीं पर हैं, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और हम सभी को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और जरूर दोबारा एक और वेबिनार का जरूर आयोजन करेंगे, क्योंकि ये समय की जरूरत है। थैंक यू।